بادل برس کر چلے گئے، شہر قائد میں تباہی کی داستان چھوڑ گئے، مانسون کا چھٹا اسپیل کراچی پر قیامت بن کر برسا، گزشتہ روز کی بارش سے سب تہس نہس ہو گیا، کئی علاقے پانی پانی، 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود نکاس نہ ہو سکا، انڈر پاسز تالاب، کئی گھروں کے مکین بھی بے گھر، کئی چراغ بھی بجھ گئے، مختلف حادثات میں اب تک 32 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ یوسف کوٹ میں بہت زیادہ پانی تھا، لوگوں میں بہت تشویش تھی ادھر۔ میں ان سے وعدہ کر کے آیا ہوں، خود اپنی نگرانی میں وہ ڈرینیج اسکیم بنواؤں گا تاکہ اللہ کرے دوبارہ ایسا مسئلہ نہ ہو۔ جو ہونا تھا ہو گیا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی والوں کو دلاسا، پریس کانفرنس میں نقصان کا سروے کرنے کا بھی وعدہ کیا، وزیر اعظم سے تعاون کی بھی یقین دہانی، تجاوزات کے خلاف بھی ایکشن کا اندیا، کہا شہر میں سیوریج اور ڈرینیج سسٹم خود بنواؤں گا، نالوں پر قبضوں میں جو بھی ملوث ہوا اس کے خلاف بھی کارروائی کا اعلان۔ ریکارڈ بارش، ریکارڈ تباہی، وزیر اعظم عمران خان کو کراچی کی صورتحال پر تشویش، وفاقی اداروں کو ریلیف سرگرمیوں میں سندھ حکومت کے ساتھ تعاون کی ہدایت، اہم اجلاس میں کراچی کی صورتحال کا جائزہ لیا، آئندہ چند روز میں کراچی کے دورے کا امکان۔ شہر قائد میں بارش نے قائد آباد کو اجاڑ دیا، یاروکوٹ پہ صورتحال تشویشناک، پانی گھروں میں موجود، تیز بہاؤ سے قیمتی سامان بہہ گیا، عوام کا برا حال، دھواں دھار بارش نے گولیمار کی سڑک کو بھی کھنڈر بنا دیا، جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے، دیگر اہم شاہراہوں کا بھی برا حال، گلستان جوہر میں گزشتہ روز دیوار گرنے سے جاں بحق 4 افراد کی تدفین کر دی گئی۔ کراچی اور سندھ میں بارشوں کی تباہی، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو متحرک، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو فون گھمایا، امدادی کاروائیاں یقینی بنانے کی ہدایت، کہا بارشوں سے پورے صوبے میں نقصان ہوا ہے، صورتحال سے نمٹنے کے لیے وفاق سے مدد مانگی جائے، عوام کو ہر صورت ریلیف پہنچایا جائے۔ کراچی کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری، آئی ایس پی آر کے مطابق سول انتظامیہ کے تعاون سے مختلف علاقوں میں 32 میڈیکل کیمپ قائم کر دیے، سرجانی، قیوم آباد، سعدی ٹاؤن میں 3 موبائل اسپتال بھی فعال، شہر کے 9 مختلف مقامات کی ڈی واٹرنگ کر دی گئی، حیدرآباد، دادو اور بدین میں بھی امدادی سرگرمیاں جاری۔ کراچی والے بارش کے نئے اسپیل کے لیے ہو جائیں تیار، محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا، ڈی جی میٹ کے مطابق اتوار اور پیر کو بارش کا نیا سسٹم برسے گا، کراچی کی حالیہ بارش نے 53 سالہ ریکارڈ توڑ دیا۔ کراچی کی بارش سے کے الیکٹرک کا بوسیدہ نظام بیٹھ گیا، بیشتر علاقوں کی بجلی گزشتہ روز سے غائب، فیڈرل بی ایریا اور گلستان جوہر کے مختلف بلاک سمیت گلشن اقبال، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد، سرجانی، شاہ فیصل کالونی اور دیگر علاقے بجلی سے محروم۔ کراچی میں مانسون کے چھٹے اسپیل نے ہوش اڑا دیے، موبائل نیٹ ورک بھی متاثر، وفاقی وزیر ٹیلی کمیونیکیشن کا نوٹس، امین الحق کا چیئرمین پی ٹی اے اور موبائل فون کمپنیز کے سربراہان سے رابطہ، موبائل نیٹ ورک کی فوری بحالی کے اقدامات کی ہدایت۔ اندرون سندھ میں بھی بارش نے تباہی مچا دی، حیدرآباد سمیت کئی شہر زیر آب، سانگھڑ کی تحصیل کھپروں میں بڑے پیمانے پر علاقہ ڈوب گیا، عمر کوٹ میں بھی کچے مکانات تباہ ہونے سے لوگ بے گھر، بدین میں ایل بی او ڈی سی سیم نالی میں پڑنے والا شگاف بھی پر نہ کیا جا سکا، سندھ کا پیرس لاڑکانہ بھی پانی میں ڈوب گیا، عوام شدید مشکلات سے دوچار۔ خیبر پختونخوا میں حالیہ بارش اور سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی، مختلف حادثات میں 16 افراد جان سے گئے، 8 زخمی ہو گئے، اپر کوہستان میں 8، سوات میں 6، شانگلہ میں 2 افراد جاں بحق ہوئے،
25 घरों को जुज़वी जबकि 29 मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। इमदादी कार्रवाइयां जारी। शहर इक़्तिदार में भी बारिश के वार। इस्लामाबाद में समरी डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश खत्म। स्पिलवेज खोल दिए। आजाद कश्मीर का भी बुरा हाल। मुख्तलिफ इलाकों में लैंड स्लाइडिंग, दरियाओं में तुग़यानी, कई देहात ज़ेर-ए-आब। दीवार गिरने के वाक़यात में 2 बच्चों समेत 13 अफराद जाँ बहक। 26 घर और 2 स्कूल भी तबाह हो गए। बलूचिस्तान में बारिश की तबाहकारियां, मुतासरा इलाके नदी नालों में तब्दील। कोयटा कराची शाहरा मुतासिर, मुख्तलिफ मकामात पर पुल टूट गए। सिंध से आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात। नसीराबाद, खुजदार, सिब्बी और जोब डिवीजन का बुरा हाल। मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद जाँ बहक। मानसून बारिशों ने पंजाब को भी पानी पानी कर दिया। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल। सियालकोट का राबता पुल टूटने से कई इलाकों से राबता मुनक़ता। मुख्तलिफ इलाकों में छतें गिरने के वाक़यात। बच्चों और ख़वातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। लाहौर में छतें गिरने से 4 अफराद लुक़मा अजल। सुबह होने वाली बारिश का पानी ताहाल नशेबी इलाकों में खड़ा। वज़ीर आला पंजाब की फौरी निकासियाब की हिदायत। पेशावर में महकमा इंसदाद दहशत गर्दी की कामयाब कार्रवाई। मतनी की हुदूद से 3 खतरनाक दहशत गर्द धर लिए। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। गिरफ्तार दहशत गर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम दाइश और जमातुल अहरार से है। दहशत गर्दों ने मुख्तलिफ इलाकों में तबाही का मंसूबा बना रखा था। पाकिस्तान में कोरोना के एक्टिव केसेस 8,833 रह गए। 24 घंटों में मजीद 415 केसेस और 9 अमवात रिपोर्ट। मुल्क में जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 6,283 हो गई। तवील मुद्दत तक जापान पर राज करने वाले वजीर आजम शिंजो आबे ओहदे से मुस्ताफी हो गए। तिब्बी बुनियादों पर अपनी जिम्मेदारियों से रुखसत ले ली। शिंजो आबे ने 2012 में वजारत उज़्मा संभाली थी। वो 7 साल 8 माह तक जापान के वजीर आजम रहे। आर्मी चीफ से सदर हॉकी फेडरेशन की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने PHF के लिए आर्मी वेलफेयर फंड से 5 करोड़ रुपए फंड का ऐलान किया। सिपाही सालार का कहना था कि पाक फौज ने हमेशा खेलों, बिलखुसूस हॉकी को सपोर्ट किया। और इंग्लिश शेरों के शिकार के लिए शाहीन रेडी। पाक इंग्लैंड पहला T20 आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। कप्तान बाबर आजम सीरीज जीतकर हिसाब चुकता करने के लिए पुरअज़्म। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं किरण रजवी और मैं होली आबिद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कराची में बादल बरस कर चले गए लेकिन तबाही की दास्तान पीछे छोड़ गए। मानसून का छठा स्पेल कराची पर कयामत बनकर बरसा। बारिश ने सब तहस नहस करके रख दिया। नाले उबल पड़े, दुकानें, घर और रिहायशी फ्लैट्स पानी के रास्ते में जो आया बच न पाया। 24 घंटे गुजरने के बावजूद पानी की निकासी न की जा सकी। अंडरपासेस आज भी तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 32 अफराद जाँ बहक भी हो चुके हैं। शहर कायद में बादल बरस कर चले गए, तबाही की दास्तान पीछे छोड़ गए। मानसून बारिशों का छठा स्पेल शहरियों पर कयामत बनकर बरसा। मेन शाहराह फैसल, ये देखें आप, ये बाइक जा रही है, देखें जैसे कि ये बाइक अपने आप जा रही है। ये पानी इतना था कि 24 घंटे बाद भी ना निकल सका। शहर के हालात ये हैं कि मरकजी शाहराहों पर कायम अंडर पासेस तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। सड़कें साफ तो हुई लेकिन शहरियों की परेशानियां फिर भी कम ना हो सकी।
कोई पूछने वाला नहीं है। ये इधर हम काम करते हैं, ये केकशा है, पूरी मार्केट जो पूरा बेसमेंट है पूरा लबालब भरा हुआ है। इनको इस गरीब आवाम की कोई परवाह नहीं है। बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम खैर ख्वाह हैं आवाम के, हम आवाम के फलाह बहबूद के लिए रात और दिन अपना एक कर रहे हैं। कानवाई की शक्ल में आते हैं, उन इलाकों में जा रहे हैं कि जहाँ पे पानी का ठहराव का कोई अता पता नहीं है। 3-3, 4-4 दिन तक के पानी खड़े रहता है यहाँ पे, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। सालों का मतलब हमेशा बारिशों में यहाँ यही प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। बस नशेबी इलाकों का तो हाल ही बेहाल है। घरों में आए पानी ने उम्र भर की जमा पूंजी को तहस नहस कर दिया। ये सारा नाला तक है, अब ये पानी रोडों पे घरों में जा रहा है, ये सब घरों में जा रहा है पानी। ये देखिए ये नाला है, सारे सामान वगैरह खराब हो जाते हैं, आने जाने की परेशानी है, बच्चे वगैरह गिर जाते हैं, बड़ी प्रॉब्लम है। ना सफाई ना गटर लाइन, हमारे घरों में गटर का पानी हमारे घर में आ रहा है, नाले का पानी हमारे घर में आ रहा है। सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची और मलीर के गोट तो पहले ही डूबे हुए थे। जुमेरात की बारिश ने सूरत हाल मजीद बदतर कर दी। शहर के जिन इलाकों से पानी उतरा वहां के मनाजिर भी कुछ अच्छे नहीं। सड़कें बह गईं, शाहराहों पर गड्ढे पड़ गए। शहर में पानी तबाही मचाता रहा और इंतजामिया चेहरे छुपाती रही। परेशान हाल शहरियों की दुहाइयां भी किसी काम नहीं आ रही। हुक्काम कहते तो हैं कि हालात खराब हैं, लेकिन उसको दुरुस्त करने के लिए कोई इकदाम क्यों और किस लिए नहीं उठा रहे, इसका जवाब किसी के पास नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि अगस्त के महीने में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई। महंगे इलाके हों या नशेबी इलाके, सब जगह पानी जमा हुआ है। उनका कहना था कि आवाम से वादा है कि आइंदा ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। शहर में सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम खुद बनवाऊंगा। मुतासर अफराद की मदद के लिए वजीर आजम से बात हुई है। यूसुफ कोट में बहुत ज्यादा पानी था, लोगों में बहुत तशवीश थी उधर। मैं उनसे वादा करके आया हूँ, खुद अपनी निगरानी में वो ड्रेनेज स्कीम बनवाऊंगा ताकि अल्लाह करे दोबारा ऐसा मसला ना हो। जो होना था हो गया, आइंदा ऐसा नहीं होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची वालों से वादा। यूसुफ कोट में बहुत ज़्यादा पानी था, लोगों में बहुत तशवीश थी उधर। जब मैं गया और मैं उनसे वादा करके आया हूँ कि हालात बेहतर होने के बाद, ये पानी निकलने के बाद मैं उधर आऊँगा और ख़ुद अपनी निगरानी में वो ड्रेनेज स्कीम बनवाऊँगा ताकि अल्लाह करे दोबारा ऐसा मसला ना आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, नुकसानात का सर्वे करेंगे। वजीर आजम ने ताउन की यकीन दहानी कराई है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है मुझे कि ये मदद करने के लिए तैयार है, तो हम वो एक एस्टिमेट लगा के, और ज़रूर फेडरल गवर्नमेंट से, इसलिए कि हम अकेले वो पूरा नहीं कर सकेंगे, हम फेडरल गवर्नमेंट से दरख्वास्त करेंगे कि वो इस सिलसिले में मदद करें। मुराद अली शाह ने तजावुजात के खिलाफ एक्शन का फिर इंदिया भी दिया। मैं चाह रहा हूँ कि एक प्रॉपर असेसमेंट हो जाए और उसमें किसी को नहीं हम छुपाने की कोशिश करेंगे कि अगर मुराद अली शाह भी कहीं इन्वॉल्व है उसका नाम भी आएगा कि चाइना कटिंग में इन्वॉल्व है, या कोई नाले के ऊपर इंक्रोचमेंट में इन्वॉल्व है, या कोई इलीगल कब्जा किया हुआ है किसी जगह पे। मैं सबसे पहले तो अपने आप को ब्लेम करूंगा ना कि लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का दफ्तर बना हुआ है नाले के ऊपर। वजीर आला सिंध का कहना था, कराची में एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती मेरिट पर होगी। हतमी फैसला सिंध काबीना का ही होगा। काशिफ फारूकी, आज न्यूज, कराची।